آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ جدید ترین چرلاپلی ریلوے ٹرمینل عوام کے لیے دستیاب، وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے کیا افتتاح۔ آرام گھرتا زو پارک فلائی اوور برج عوام کے لیے کھول دیا گیا، چیف منسٹر اور صدر مجلس کے ہاتھوں رسمی افتتاح۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں میٹرو متاثرین میں چیکس کی تقسیم۔ ایم جی بی وسطی چندرائن گٹا 4.5 سال میں کام مکمل ہونے کی امید۔ وکیل کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کے ٹی آر اے سی بی کے دفتر سے واپس لوٹ گئے۔ ریاست میں 3 کروڑ سے زائد رائے دہندگان، الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ فہرست جاری کر دی۔ اور حیدرآباد میں سردی کی شدید لہر برقرار، کئی علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت میں 2 تا 4 ڈگری کی کمی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ غازہ پٹی میں سخت موسمی حالات اور شدید سردی کے نتیجے میں ایک اور شیرخوار جاں بحق ہو گیا۔ سردی سے ٹھٹر کر فوت ہو جانے والے شیرخوار کی عمر صرف 35 دن تھی۔ پیر کے دن فلسطینی معاون ایجنسی نے طبی ذرائع کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ روس کے مغربی کیروف علاقے کی ایک عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد کی موت ہو گئی۔ روسی وزارت برائے ہنگامی حالات نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ آگ ماسکو سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال مشرق میں کلیمز نامی گاؤں میں لگی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 افراد ہلاک ہوئے اور 8ویں نعش ملبہ صاف کرنے کے عمل کے دوران دستیاب ہوئی۔ حکام آگ لگنے کی وجہ کی جانچ کر رہے ہیں۔ کیروف کے گورنر نے کہا کہ اس عمارت میں 8 لوگ مقیم تھے۔ سلواڈور میں اتوار کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایل سلواڈور کے ماحولیات اور قدرتی وسائل کی وزارت کے مطابق اتوار کی رات مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11:08 پر آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو حیدرآباد میں جدید ترین چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کا عملی طور پر افتتاح کیا اور اسے جدید انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی کی جانب ہندوستان کے سفر میں ایک سنگ میل کے طور پر اجاگر کیا۔ 413 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ٹرمینل اپنی جدید سہولیات کے ساتھ ایئرپورٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں 6 ایکسیلیٹرز، 7 لفٹیں، مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ ویٹنگ ہال، ایک اعلیٰ درجے کا ویٹنگ ایریا، ایک ایگزیکٹو لاؤنج اور سہولیات جیسے کیفیٹیریا، ریسٹورانٹ اور بیت الخلاء شامل ہیں۔ فی الحال ٹرمینل سے ٹرینوں کے 13 جوڑ چل رہے ہیں، جن میں مزید 12 ٹرینوں کے اضافے کا منصوبہ ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں مودی نے 2014 سے وندے بھارت ٹرینوں، امرت بھارت اسٹیشنوں اور تقریباً 100% ریلوے الیکٹریفیکیشن جیسے اقدامات پر زور دیتے ہوئے ہندوستانی ریلوے کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ and my colleague Minister Mr. Sridhar Babu, Malkajgiri Parliament Member Ital Rajendra ji, सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना जनता के तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से ये चरलापल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वें पीटी इम्तिहान को मनसूख करने की मांग के ताल्लुक से भूख हड़ताल पर बैठे जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। बीपीएससी का 70वां पीटी इम्तिहान 13 दिसंबर 2024 को मुनक्किद हुआ था। उम्मीदवारों ने कहा था कि पटना के बापू इम्तिहानी मरकज में मुनक्किदा इम्तिहान का पेपर इसी दिन लीक हो गया था। बिल्कुल जारी रहेगा, वहाँ भी जेल में भी जारी रहेगा। आप पर अकेला हमला नहीं सर, 14 करोड़ लोगों पर हमला, जनतंत्र पर हमला। हम लोग साथ में है सर, रामबली सर के साथ में है, चिंता नहीं करिए। नहीं रुकना नहीं, रुकेंगे तब तो ये लोग का मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं देंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, तब प्रशासन को निपटने देंगे। ये लोग सोच के लाए थे कि यहाँ लाएंगे बेल दिला देंगे।
झारखंड के रांची में इंतकाल कर जाने वाले 65 साल हाजी समीउल्लाह अंसारी की नाश को मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजर ने बिल अदा किए बगैर इनके अरकान खानदान को देने से इनकार कर दिया था। हॉस्पिटल ने मैयत हवाले करने की एवज 94 लाख रुपए का बिल अदा करने को कहा। जब इसकी खबर झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी तक पहुंची तो उन्होंने बगैर किसी ताक़ीर के हॉस्पिटल से रब्ता किया और मैयत अरकान खानदान के हवाले करवाई। इसके लिए वजीर की काफ़ी तारीफ की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में प्राइवेट स्कूल की बस नहर में गिर पड़ी। इस हादसे में बस में सवार बच्चों में से बाज़ बच्चे जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पेनुबुली इलाके में पेश आया। जख्मी तुलबा को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े पर इन तुलबा के वालिदीन ने तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ये हादसा पेश आया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुक़न्नना के साथ मिलकर पीर की शाम पुराना शहर के बहादुरपुरा में आराम घरता जू पर फ्लाई ओवर का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। ये फ्लाई ओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाई ओवर है, जिसकी मसाफत 4.8 किलोमीटर तवील है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए के अखराजात आयद हुए हैं। यह फ्लाई ओवर शहर हैदराबाद से बेंगलुरु हाईवे की ट्रैफिक के मसले को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर में 11.5 किलोमीटर तवील मसावित वाले PVNR एक्सप्रेस फ्लाई ओवर को तामीर किया था और अब ताज़ा तौर पर कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में PVNR एक्सप्रेसवे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज तामीर हुआ है। అమృతహస్తాల మీదుగా అక్కడ జ్యోతి ప్రజ్వలన కావించుకొని గ్యాలరీలో అన్ని కూడా యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు వారితో పాటు వివిధ శాఖల మంత్రులు అతిథులు అందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది। GHMC 6-lane grade separator flyover from Aram Ghat to Zoo Park under SRDP inaugural function inaugural ceremony కి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము। ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం వేసే ప్రతి ఆలోచన వేసే ప్రతి అడుగు ప్రజా సంక్షేమం కోసం, చేసే ప్రతి ఆలోచన ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ద లీడర్ లైక్ డైనమైట్, ద డైనమిక్ విజన్, ద మ్యాన్ విత్ డైనమిక్ మిషన్ శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మనందరికీ స్ఫూర్తి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి అందరికీ కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము। GHMC అధికారులకు అందరి మంత్రులకి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము। జనాలందరూ కూడా దయచేసి రండి ప్లీజ్। మాన్య మహోదయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ద డైనమిక్ లీడర్, దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఇటు పక్కకు రండి, గ్యాలరీలో ఎవరు నించోకండి।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि MGBS चंद्रायन गुट्टा मेट्रो ट्रेन की मंजूरी काफ़ी खुश आइंद बात है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 चीफ मिनिस्टर्स ने जो काम नहीं किया वो काम मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन को पुराना शहर को वसअत देने के मामले में कम से कम दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। सदर मजलिस ने आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मेट्रो ट्रेन के दूसरे मरहले के कामों के दौरान जमीन और जायदाद से महरूम होने वाले पुराने शहर के 40 मुतासरीन में मुआवजे के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी भी मौजूद थे। काम मुकम्मल करना चाहता हूं, तो हम चीफ मिनिस्टर को समझाए। चीफ मिनिस्टर फौरन हमारी बात को राजी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पर स्क्वायर यार्ड 81,000 रुपये 81,000 ये मंजूर हुआ। और साथ ही साथ कलेक्टर साहब ने भी ये भी बताया है कि जिस किसी का पूरा घर या मलगी जा रही है उनको RNR में 6 लाख रुपये लमसम दिए जाएंगे। और तीसरा ये कि स्ट्रक्चर वैल्यू अलहदा उसमें दी जाएगी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कलेक्टर साहब से और NVS रेड्डी साहब से गुजारिश ये है कि आप लोग जहाँ जहाँ स्टेशन बना रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर सालार जंग म्यूजियम के पास एक स्टेशन होगा, मिरालम मंडी के पास एक स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम आप चार मीनार रख रहे हैं, तो मेरी और आगे भी स्टेशन बनेंगे आपके पास। कहाँ पे है वो दो तीन जगह और स्टेशन आ रहे हैं, फलकनुमा में है, चंद्रायन गुट्टा है, तो अलियाबाद है। तो मेरी आपसे NVS रेड्डी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये अफेक्टेड लोगों में से अगर कोई आगे बढ़कर वहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा है उस स्टेशन के अंदर, तो आप अगर इनको काइंडली कंसिडर करिए। इनको आप जाहिर है आपका तरीका होगा ऑक्शन करके जो भी है, मगर इन लोग अगर ये लोग अफेक्टेड लोगों की लिस्ट आपके है तो प्रायोरिटी इनको अगर आप दिए तो कम से कम अगर ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे, अगर वो वाकई में उस स्टेशन में कुछ उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी इनको दीजिए। दूसरी बात, मैं कलेक्टर साहब से NVS रेड्डी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जैसा मिरालम मंडी के पास आप स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम चार मीनार रख रहे, तो वहां से आप चार मीनार तक स्ट्रक्चर जो मॉन्यूमेंट है वहां पर आप एक स्काई वॉक बनाइए, ताकि लोग को आने जाने से इनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा ये कि सालार जंग म्यूजियम के पास एक स्टेशन बनाएंगे, वहां पे भी स्काई वॉक बनाइए, क्योंकि टूरिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। चार मीनार के पास लाड़ बाजार है, सालार जंग म्यूजियम है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये 3-4 एक दो मेरे रिक्वेस्ट आपसे है कि नंबर 1, जहाँ कहीं भी आप स्टेशन बनाएंगे वहां पर इनअफेक्टेड लोग अगर आकर उनको लगता है कि भाई हम यहाँ पर कुछ कारोबार करने से हमको फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप उनको प्रेफरेंस दीजिए और 2 स्काई वॉक जरूर बनाइए। तीसरा साहब, जरा अच्छा रोड वाइडनिंग हो तो फुटपाथ भी अच्छा बनाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के हाथों आज हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मुतासरीन में मुआवजे के चेक्स की तकसीम का आगाज कर दिया गया। इस तकरीब में कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी, डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन स्वर्णलता और दीगर ओहदेदारों के अलावा मुतासरीन मौजूद थे। सदर मजलिस ने कहा कि महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रायन गुट्टा के तहत 7.5 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल पुराना शहर में तामीर होने जा रही है। बैरिस्टर अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 4.5 बरस में पुराना शहर में हैदराबाद में मेट्रो रेल की MGBS चंद्रायन गुट्टा मेट्रो लाइन मुकम्मल कर ली जाएगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और BRS दोनों जमातें कांग्रेस हुकूमत को सियासी तौर पर परेशान करने के लिए एक ही एजेंडे पर काम कर रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत की मौजूदा हालत के बावजूद कांग्रेस की हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। उन्होंने आज सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन में चहलकदमी करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बादशाह वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक रैतु भरोसा
और अराजी से महरूम गरीबों को सालाना 12,000 रुपये फराहम करने का फैसला किया है। ये स्कीम 26 जनवरी से नाफिज होगी। అట్టహాసాలకు వెండ్రు పైన పటారం లోన లొటారం అని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినాము. ఇవాళ వచ్చి సూచనప్పటికి ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని వెంటనే శాసనసభ వేదికగా తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పినాము. ఇది గ్రామ గ్రామాన తెలుసు. అయినప్పటికీ ఏ పని కూడా ఆగకుండా ఉండాలని అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తోంది మా ప్రభుత్వము. దీనిపైన కూడా ఇద్దరు కలిసి మూకుమ్మడి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎన్నికైనప్పటి నుంచి ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతామని, ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుందని రాజకీయపరంగా कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रईतु भरोसा स्कीम के तहत 15,000 रुपये फी एकड़ के बजाय सिर्फ 12,000 रुपये फी एकड़ देने के फैसले के खिलाफ बीआरएस की जानिब से रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया। पार्टी कैडर ने आदिलाबाद मंडल मुस्तकिर के साथ साथ निर्मल, मंचरियाल और कोमरम भीम आसिफाबाद अजला में रास्ता रोको एहतजाज किया। उन्होंने किसानों को धोखा देने पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए नारे लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात के वक्त किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रही और किसानों को धोखा दिया। बोध के रुकने असम्बली अनिल जाधव, जिन्होंने निरड़ीगोंडा मंडल मुस्तकिर में मुनक्किदा एहतजाज में हिस्सा लिया, कहा कि कांग्रेस की जानिब से अपने वादे से इन्हिराफ करना और किसानों को धोखा देना शर्मनाक है। फार्मूलाई कार रेस मामले में हुई मुबैना धांधलियों के इल्जामात का सामना करने वाले साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पीर को एसीबी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनके वकील को अंदर जाने की इजाजत न दी, जिस पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर अपनी तहरीरी राय एसीबी हुक्काम को पेश की। बादजा पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। कबलजी केटी रामाराव एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूलाई रेस केस में एसीबी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद वो पूछगछ के लिए वहां पहुंचे थे। ताहम दफ्तर के बाहर उनके वकील को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर केटी रामाराव ने नाराजगी का इजहार किया। I am here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's, direction to appear before them. I'm here. They are not allowing my advocates. They are not allowing me to have my own rights. All I am seeking of the Anti-Corruption Bureau is that they respect the High Court's judgment. High Court, in fact, has reserved its judgment. I am a law-abiding citizen. I worked as a lawmaker. I am still a lawmaker. So therefore, all I am asking the ACB is to ensure that my rights are protected as an individual, as a citizen. I am entitled to my lawyers being present with me, but unfortunately they seem to have a different opinion. So we are trying to discuss with them and engage with them. All I am saying is, they have made extensive arguments in High Court, and the matter is sub judice. The judgment is reserved. I am a law-abiding citizen, therefore I am here. But if they do not want to ensure that my rights as a citizen are protected, I have no right but to walk away. Right. फार्मूलाई रेस मामले में तेलंगाना के साबिक वजीर और रियासत की अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश होने और किसानों की हिमायत में एहतजाज के पेश नज़र बीआरएस के कई लीडरों को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था। पुलिस ने आज सुबह हुजूराबाद के एमएलए कौशिक रेड्डी को हैदराबाद में घर पर नज़रबंद कर दिया। इसी तरह बीआरएस वी के जनरल सेक्रेटरी एम विद्यासागर को कल रात कोल्लूर पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया। बीआरएसवी के 100 से ज्यादा लीडरों को पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव को फार्मूलाई कार रेसिंग मामले में हुई मुबैना धांधलियों के सिलसिले में पूछताछ के लिए एसीबी ने एक और नोटिस जारी की है। ये ताज़ा नोटिस पीर की शाम जारी की गई और उन्हें 9 जनवरी को पूछताछ के लिए एसीबी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई। असल में इस केस के सिलसिले में एसीबी ने 6 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी और इस नोटिस की बुनियाद पर केटीआर आज अपने वकला के हमरा एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने वकला के साथ अंदर दाखिल होने से रोक दिया, जिस पर वो वहां से वापस हो गए। ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వమంటే లాయర్ రావడానికి వెళ్ళలేదు.
లేదంటే మీరు వద్దు అంటే వెళ్ళిపోతాం. లేదు మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోమంటే మీకు లెటర్ ఇచ్చి हैड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने तालाबों और कुंटों पर कब्जा करते हुए और उसके बफर जोन में FTL में हुई गैर मजाज तामीरात के खिलाफ अवामी शिकायत वसूल की। इस प्रोग्राम के पहले दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हैड्रा के कमिश्नर को 83 शिकायत मौसूल हुई। सिकंदराबाद के बुद्धा भवन में वाक़ हैड्रा के दफ्तर में आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हैड्रा प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कमिश्नर ने आवाम से तहरीर शिकायत मौसूल की। बादजा उन्होंने बताया कि इन तमाम शिकायत का तफसीली जायजा लेते हुए 3 हफ्तों के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा फहरिस्त राय दहिंदगान को जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रियासत में फिलवक्त 3,35,27,925 वोटर्स हैं, जिनमें 1,66,41,419 मर्द वोटर्स और 1,68,67,735 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि 2,829 तीसरी जिन्स के वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 18 था 19 साल की दरमियानी उम्र के वोटर्स की तादाद 5,45,026 है, जबकि 25 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर वोटर्स की तादाद 2,22,091 है। NRI वोटर्स की तादाद 3,591 है। सबसे ज्यादा वोटर्स हैदराबाद के सेरीलिंगमपल्ली असम्बली हलके में हैं। जिले नागर कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जिले के जूपल्ली गांव में इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब कार का तसादुम लारी से हो गया। पुलिस के मुताबिक कोदाड़ जड़चरला कौमी शाहरा 167 पर एक कार टिप्पर लारी से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इनकी शनाख्त नागर कर्नूल जिले के कोटरा गांव के गणेश और टिंटरा गांव के रामाकोटी के तौर पर की है। शहर के मजाफाती इलाके घटकेसर के करीब दिलखराश हादसे में 2 अफराद जिंदा जल गए। ये हादसा घटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में घनपुर सर्विस रोड के पास उस वक्त पेश आया जब चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। जराये के मुताबिक तेज रफ्तारी से गुजरने वाली कार में अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में ड्राइवर फुटपाथ पर गिरकर हलाक हो गया, जबकि ड्राइवर की बाजू की सीट पर बैठे हुए शख्स की उसी सीट पर मौत हो गई। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया और आग बुझाई गई। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से जांच कर रही है। गोवा से बजरिए ट्रेन गैर कानूनी शराब की हैदराबाद मुंतकिली पर पुलिस ने इसको जब्त कर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स STF की 2 टीमों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में 82 शराब की बोतलें जब्त की, जिन्हें गोवा से वास्को डिगामा एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद लाया गया था। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सर्दी की लहर कम होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई इलाकों में अक़लतरीन दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ है। सर्दी की लहर में कदर कमी के बावजूद हैदराबाद में कोहर के साथ सर्द मौसमी हालात अब भी बरकरार हैं और कई मकामात पर औसत अक़लतरीन दर्जे हरारत इतवार की शाम और पीर की सुबह के दरमियान 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। कुछ दिन पहले तक इन मकामात पर अक़लतरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था, जो हैदराबाद में बढ़ते हुए दर्जे हरारत का वाज़ेह इशारा है। जदीद तरीन चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल आवाम के लिए दस्तयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। आरामगढ़ता ज़ू पार्क फ्लाईओवर ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया गया। चीफ मिनिस्टर और सदर मजलिस के हाथों रस्मी इफ्तिताह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मेट्रो मुतासरीन में चेक्स की तकसीम। MGB उस्ताद चंद्रायन गुट्टा 4.5 साल में काम मुकम्मल होने की उम्मीद। वकील को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। KTR ACB के दफ्तर से वापस लौट गए। रियासत में 3 करोड़ से जायद राय दहिंदगान।
इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी कर दी। और हैदराबाद में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, कई इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।